Good morning students. In this video we will be learning that what are those other factors besides income which are important for knowing how the development of country is and for comparison of various countries on the basis of development. Now before that I have put a question mark, a question before you all, is that is income or per capita income only the criteria for comparison? क्या सिर्फ एक इनकम या पर कैपिटा इनकम ही एक ऐसा क्राइटेरिया है कंपैरिजन के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट? नाउ वन थिंग स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट पर कैपिटा इनकम क्या होता है. तो पर कैपिटा इनकम मीन्स द एवरेज इनकम ओनली. इट मीन्स द एवरेज इनकम ओनली विच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं. ठीक है, पर कैपिटा इनकम. ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हिंदी में इसको कहते हैं. ठीक है, तो that is calculated by dividing total income of country on total population. So this is an important criteria. So in this we will be studying that what are those other criteria besides income which decide the development of a country. So here I have provided you an answer. No, only income is not the criteria. There are other criteria too which are important. Now what are those criteria? Those criteria are, number one, it is IMR. Number one criteria is IMR. It is called as infant mortality rate. Infant mortality rate. ठीक है. Now what is infant mortality rate? इसको हम समझते हैं. तो infant mortality rate basically refers to the number of deaths per 1000 live births of children under 1 year. The number of deaths per 1000 live births of children under 1 year. Okay, now forget about this definition, just learn this definition, it is important, this one. तो infant mortality rate in हिंदी you can understand that 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल के पहले, उसको हम infant mortality rate कहते हैं. इंडिया में दिस रेट इज 30. इंडिया का रेट 30 है, यानी कि इंडिया में 1000 बच्चों में से अप्रॉक्स 30 बच्चों की डेथ हो जाती है. अप्रॉक्स 30 बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल में, इन 1 ईयर. तो दिस इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट. अब अगर IMR किसी देश का जितना कम होगा वो देश उतना ही डेवलप्ड कहा जाएगा. ओके, तो एवरी एंड ईच गवर्नमेंट ट्राइज टू लोअर दिस रेट ऑफ IMR. जितना रेट कम उतना ही कंट्री डेवलप्ड. Now next important criteria which decides the development of a country is literacy rate. Literacy rate. Now what is literacy rate means? So what it means? So literacy rate means literate population in the age या in the 7 and above age group is called literacy rate. 7 साल 7 years के ऊपर के जो भी लोग who can read and write, जो कि पढ़ सकें या लिख सकें, उनको हम लिटरेट कहते हैं as per the census definition in India of literacy rate. ओके, 7 साल के ऊपर के जो भी लोग, कोई भी जो कि पढ़ सकता है लिख सकता है, who can read as well as write above 7 years of age, okay, that is called as literacy rate in India. In India the literacy rate is 74.0% as per census 2011. As per census of 2011, 74.04% is the literacy rate in India. So this is also an important criteria for determining the development of a country. Literacy rate जितना ज़्यादा होगा वो country उतनी ही ज़्यादा literate मानी जाएगी, और literate मानी जाएगी यानी कि इसको हम डेवलप्ड भी मानेंगे. ठीक है, तो ये वो क्राइटेरियाज हैं जो कि इनकम के अलावा हैं, जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और ये भी किसी कंट्री को डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड या डेवलपिंग की कैटेगरी में रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो हमने लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ा. अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 विच इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अनदर क्राइटेरिया विच डिसाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, या कंपैरिजन में जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू ऑल एन इम्पॉर्टेंट डाटा फ्रॉम योर बुक.
which is table number 1.6, which is table number 1.6. You all can see from your book also. Now in this table the data is provided for the year 2013. So for the latest data you all can go into the internet and search for it, or otherwise I will also dictate that when I will take live class of this. Okay, so what important thing for us is that life expectancy, this is provided over here as per the 2013 डाटा. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ समझते हैं. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, एज द नेम सजेस्ट्स, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ या लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. यानी कितने साल तक कोई जिंदा है, एक्सपेक्टेड लेंथ क्या है किसी के लाइफ की, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अच्छी हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली उस कंट्री की हेल्थ सर्विसेज, उस कंट्री में पॉपुलेशन कम है, वहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. ओके, हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर वेरी गुड. ओके, pollution is really less, there is more focus, more importance given to the environmental issues and environmental concerns. उनका importance दिया जाता है, इसीलिए लोगों की हेल्थ अच्छी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इस वजह से वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया विच डिसाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल्सो यू कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल in India it has life expectancy, as per your book it is 66.4, but as per the latest data I would like to tell you all that now the life expectancy of India is around 70. So you can update also. So for India it is now 70. For Sri Lanka it is what, 74.3. it was as per 2013. आज ये और ज़्यादा हो गया होगा. तो in this you can see that सबसे ज़्यादा life expectancy कहाँ पे है? श्रीलंका में. So that means श्रीलंका में इस क्राइटेरिया में लीड कर गया. श्रीलंका इस मामले के डेवलपमेंट में लीड कर गया इन सारे देशों से, इन सारे कंट्रीज से. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर डिसाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस बनाना नहीं होता. सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ अच्छी इनकम होना ही नहीं है. डेवलपमेंट का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में. ओके, सो यहाँ पर आपको वही चीज़ दिख रही होगी. इंडिया इस मामले में पीछे है, इंडिया इज़ बिहाइंड. बांग्लादेश भी हमसे बेटर है, श्रीलंका भी हमसे बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी वहाँ पर लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट which tells us about the level of development of a country and for or on the basis of which we can compare different countries is health या medical facilities. अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छा मेडिकल इक्विपमेंट्स, रिसर्चेस होना, दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. जिस देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अच्छा होगा, दैन देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट इन दैट कंट्री. ठीक है, उसका भी, वो भी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा. एंड हियर स्टूडेंट्स हैव टेकन ओनली 4 क्राइटेरियाज. इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट मुझे जो लगे, और इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने अपने खुद के भी बनाए हुए हैं, तो आई हैव टेकन दैट. So these are some criteria besides income on the basis of which we can compare different countries. Okay, now moving further students, let's take the next topic, which is public facilities. Public facilities. Now what is public facilities? देखिए, you have studied development on the basis of income and development on the basis of various other criteria also besides income, which is IMR, literacy rate, life expectancy, health, etc. अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? वो फैसिलिटीज़ जो कि पब्लिक को मिलने चाहिए, उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, जस्ट अ केस स्टडी, दैट महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम दैन केरला. अब यू हैव स्टडीड फ्रॉम योर बुक, या आपने पढ़ा होगा अपने बुक में कि आपको यहाँ पर 3 स्टेट्स दिए हुए हैं. द 3 स्टेट्स आर प्रोवाइडेड ओवर हेयर, महाराष्ट्र, केरला एज वेल एज बिहार. महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. इट इज़ टेबल नंबर 1.4. ओके, नाउ व्हाट इज़ गिवन ओवर हेयर. यहाँ पर जब आप पढ़ते हो इस पैराग्राफ को,
तो यू विल नो दैट महाराष्ट्र का जीडीपी बहुत अच्छा है। जीडीपी का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का जीडीपी केरला के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, यानी वो इकोनॉमिकल टर्म्स में महाराष्ट्र केरला से बहुत बेटर है। आप ऐसा समझ सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इस पैराग्राफ में भी यही चीज़ें आपको समझाई गई हैं कि कैसे महाराष्ट्र हैज़ अ बेटर जीडीपी एज कंपेयर टू केरला। केरला से बेटर जीडीपी है उसका। ठीक है, और वहीं पर जो बिहार है, बिहार का जीडीपी और ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए 43 दिया हुआ बुक में, बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज बहुत ही ख़राब है। केरला का आप देख सकते हो आईएमआर इट इज़ जस्ट 12 and Maharashtra ka IMR is what? It is 25 as per census 2012. So what this shows? This shows that केरला का जीडीपी भले ही कम हो, केरला इकोनॉमी टर्म्स में भले ही कमज़ोर हो, इकोनॉमी उसकी बहुत मजबूत ना हो एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र, बट वहाँ का IMR कितना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a state which is leading in some indicator, ठीक है, हो सकता है महाराष्ट्र का जीडीपी अच्छा हो बट केरला का जीडीपी ख़राब हो, लेकिन केरला यहाँ पर आईएमआर में लीड करता है, केरला लिटरेसी रेट में भी लीड करता है, जबकि महाराष्ट्र लिटरेसी रेट में भी केरला से कम है और आईएमआर में भी महाराष्ट्र कम है, ख़राब है। यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी केरला में है। केरला में पॉपुलेशन भी कम है। दूसरी बात, यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, साफ़ है, एनवायरनमेंट इज़ रियली क्लियर, पोल्यूशन इज़ वेरी लेस। In Kerala, the infrastructure facilities are good, health services are good, better. That is why the life expectancy in Maharashtra is more as compared to, not life expectancy, IMR in Maharashtra is more as compared to Kerala. ठीक है, केरला तो इसका 50% है, 50% है। ओके, जबकि बिहार आप देख सकते हो, बिहार तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है बिहार के IMR में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है, 1 साल से पहले ही डेथ हो जाती है, 43 बच्चों की 1000 में से। और लिटरेसी रेट में भी देख सकते हैं बहुत ही पीछे है बिहार। तो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स जिनसे हम पता कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, और इसी तरीके से हम कंट्रीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दीज आर सम फैक्ट्स। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू ओवर हियर इज़ दैट महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम दैन केरला। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र की इनकम ज़्यादा है, इट हैज़ मोर जीडीपी एज कम्पेयर टू केरला, बट फ्रॉम लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, केरला इज़ मच बेटर टू महाराष्ट्र। ये आपने देख लिया अभी उस पर्टिकुलर टेबल में। आगे चलते हैं। दिस क्लियरली शोज दैट हैविंग गुड इन इनकम डज नॉट मीन यू आर डेवलप्ड। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डेवलप्ड हो। ये बात मैंने आपको बहुत पहले से ही कही है कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होता डेवलपमेंट को निकालने का। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं और हर एक क्राइटेरिया अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की इनकम ज़रूर अच्छी है, लेकिन बाकी चीज़ों में, जैसे कि व्हेन आई टॉक अबाउट IMR एंड व्हेन आई टॉक अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हेन आई टॉक अबाउट लिटरेसी रेट, तो महाराष्ट्र वहाँ पर केरला से पीछे है। भले ही वहाँ का इनकम बहुत अच्छी है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का जीडीपी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो व्हाट ऑल दिस शोज दैट यू कैन नॉट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और मनी कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज। तो अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को खरीद सकते हो। ठीक है, या आप एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकते हो, आप अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल कोविड-19, तो कोविड-19 इज़ द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। अब आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अफेक्टेड तो अमिताभ बच्चन भी हुए। ओके, अफेक्टेड तो बड़े बड़े लोग भी हो रहे हैं उससे। तो इफ़ यू आर हैविंग मनी दैट डज नॉट मीन दैट यू विल बी सेव फ्रॉम वायरल डिजीजेज और इन्फेक्शियस डिजीजेज, और इफ़ यू आर हैविंग मनी देन यू कैन बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटी लेवल पे ही सही करी जा सकती हैं। जब सबका पार्टिसिपेशन होगा तो ही एनवायरनमेंट भी सही हो सकता है, तभी डिजीज़ेस भी कंट्रोल आ सकती हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे, आज के समय पे रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जानी चाहिए। ठीक है, जब अच्छी फैसिलिटीज़ अगर कोई प्रोवाइड करेगा तो दैट मीन्स
that place, that particular region, that particular country or that particular nation is developed. ठीक है. पब्लिक फैसिलिटीज़ होता क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज़ मीन्स गुड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स, पीडीएस फॉर पुअर पीपल और लो इनकम पीपल, ठीक है, जो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, ऐसे लोगों के लिए पीडीएस देना चाहिए. इसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है. तो हेंस वेरियस पब्लिक फैसिलिटीज सच एज गुड हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर पुअर और लो इनकम पीपल और मार्जिनलाइज पीपल. मार्जिनलाइज का पीपल का मतलब वो लोग जो कि पिछड़े हैं, जो कि जिनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, ठीक है. तो वी व्हाट वी नीड गुड पब्लिक टॉयलेट्स, public needs good hospitals, we need good schools, we need educational facilities. So if any place is there which is having all these facilities, that means that that place is developed. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वो चीज़ या वो जगह डेवलप्ड है. तो what you have read in this chapter, you have read that only income is not the criteria और only literacy rate is not the criteria. मतलब बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, कोई किसी क्राइटेरिया में आगे है तो कोई किसी क्राइटेरिया में है. अब केरला लिटरेसी रेट में लीड करता है तो महाराष्ट्र इकोनॉमी में लीड करता है, ठीक है. अगर हम डेवलपमेंट का कंपैरिजन इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो महाराष्ट्र लीड करेगा, लेकिन अगर हम आईएमआर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड करेंगे देखेंगे तो फिर केरला विल लीड एंड महाराष्ट्र लैग्स बिहाइंड, ठीक है, डेवलपमेंट में. सो दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, दैट देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज. Okay, so these are some important parameters of development. I hope you have understood the today's topic. Okay.